Hallelujah. का धन्यवाद है, प्रभु उनको आशीष दे एक अच्छी प्रार्थना के लिए. Just for the sake of the brethren in English, I'd like to quote here that Brother Hari Khadka, he prayed for submission of this meeting into the hands of the Lord and blessings for everyone. And he also prayed that in this difficult situation of corona going on everywhere, God has protected us, many of us, and kept us safe. And we pray for the safety of all of the people, especially the people who are the children of the household of God. There have been a big local disaster of the flood and storm, and mountain rivers are flooding, and there have been a lot of landslides happening in Nepal. So he also prayed for that. We join the thoughts and the feelings for brethren in Nepal who have suffered due to these landslides and heavy floods in Nepal. So that may God protect and rehabilitate and save those families who are still suffering. We thank God for all brethren here that God has allowed us to remain safe and we could come and join here. And we are happy that Brother Sam is also with us. I'm also here by grace of God along with the brethren. And now we will hand over these meetings in the hands of the Lord, and we will switch over to Brother Sam so that Brother Sam can speak to us from the Word of God. By Sam के द्वारा अब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और इस प्रार्थना सभा को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं. और सिस्टर एलिजाबेथ, प्लीज आप अपना माइक स्विच ऑफ कर लें. आपका माइक ऑन है, उसको आप डिस्प्यूट. ठीक है, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. स्विच ऑफ हो गया. ओवर टू ब्रदर सैम नाउ, एंड गॉड ब्लेस यू. एंड most of us, we have to keep, except the speaker and translator, we like to keep our mics switched off, please. Thank you. God bless you. God bless you. Brother Sam. Thank you, Brother Manuel. God bless you too. God bless you, Brother Manuel. Amen. God bless all my beloved. सभी भाई बहनों को प्रभु की आशीष मिले. We are happy to be again together today. हम एक बार फिर से यहाँ पर प्रस्तुत हैं, इसके लिए हम बड़े खुश हैं, आनंदित हैं. To share a few moments together around the word of God. और कुछ समय हम प्रभु के वचन के आसपास, प्रभु के वचन के अंदर गुजार सकते हैं, इसके लिए हम आनंदित हैं. As the Bible says, we are pilgrims and strangers on this earth. जैसा बाइबल बताती है कि संसार में, इस धरती पर हम एक यात्री के अनुसार हैं, सफर कर रहे हैं हम. And we are on our way to where we know already. और हम उस जगह पर जो हमारा निर्धारित स्थान है, उसकी ओर हम अग्रसित हो रहे हैं, उसकी ओर हम बढ़ते जा रहे हैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार. And every day we are training ourselves to be more acquainted with what is the lifestyle of where we are heading to. और वो कौन सा आखिरी चरण है जिसकी तरफ प्रभु हमको ले जाना चाह रहा है, और हर दिन हम उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, और प्रभु का हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं. We came in this flesh on earth. और हम इस धरती पर इसलिए आए. And sin found place in this flesh and separated us from God. और हम तो बिल्कुल पवित्र अवस्था में आए थे, पर जो गुनाह था, पाप था, उसने हमारे और प्रभु के बीच में, परमेश्वर के बीच में दीवार पैदा कर दी. But the Lord is good. और प्रभु भला है. He has reconciled himself with us through Jesus Christ. उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप अपने साथ दोबारा करा लिया. Now if we go into Genesis, और अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं, उत्पत्ति में in chapter 3, और उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर हम जाएं, when the Lord spoke to the serpent, और जहाँ प्रभु जो था वो शैतान से, सर्प से बात कर रहा था, 3 अध्याय उत्पत्ति में. and he cursed the serpent. और उसने
सर्प को, शैतान को श्रापित किया प्रभु ने। On verse 15, chapter Genesis 3, verse 14. उत्पत्ति 3:14 में हम इस बात को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3:14, yeah. So the Lord God said to the serpent, because you have done the curse for every beast. अब यहोवा ने सबसे कहा, तुम जो किया इसलिए दूसरे पशुओं से अधिक आएगा। The baby on your goat. And in between your seed and her seed. और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं अब तू उसकी एड़ी को डसेगा। Now, beloved, we all know that this woman is a type of the church. और हम जानते हैं कि ये जो स्त्री है, जो यहाँ पर हवा है, जो स्त्री है, वो एक तरीके से कलीसिया को दर्शाती है, कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। And the children of the woman is the son of God and the sons of God. और उसके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, यानी कि संतान हैं। And the Lord already told the serpents that there should not be peace between us and him. और परमेश्वर ने ये पहले से ही बता दिया था कि हमारे, यानी कि जो परमेश्वर की संतान है, जो स्त्री का वंश है और जो सर्प का वंश है, उनके बीच में हमेशा से बैर रहेगा, कभी सुलह सलामती नहीं चलेगी। And then he said as well that we shall have victory on him. पर ये भी उसने साथ में वादा किया और बता दिया कि हम उसके ऊपर विजयी होंगे। Amen. आमीन। If we go in Hebrews, और अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में जाएं, chapter 2, इब्रानियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में जाएं, on verse 10, और उसकी 10वीं आयत को हम देखें। इब्रानियों, or we take from verse 9. 9वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे, But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों 2 और 9वीं आयत। इब्रानियों 2:9 हम पढ़ रहे हैं, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। For it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of the salvation perfect through suffering. और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो अपने बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. क्योंकि 11वीं आयत, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। Saying, I will declare your name to my brethren, in the midst of the assembly I will sing praise to you, and again I will put my trust in him. Go on, brother.
12 and 13th verse. Yes, please. Yes. 12वीं और 13वीं आयत में वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दे दिया। Amen. आमीन। So we see here Jesus calling us his brethren. यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई बोल रहा है, रिश्ता दिखा रहा है। And through death, he conquered the devil, the serpent. और मृत्यु के द्वारा उसने शैतान के ऊपर जीत हासिल करी, विजय प्राप्त करी। And after this victory, और इस जीत के द्वारा he called those who were sinners brethren. जो पापी थे, जब उसने उनको जीत लिया, जब गुनाह के ऊपर उनकी जीत बन गई, तब वो प्रभु यीशु मसीह के भाई बन गए। So in his victory, he associated us as overcomers as well. अपनी विजय के अंदर, अपनी जीत के अंदर, हम अपनी जीत हमें जीत दिलाने के बाद उसने हमसे रिश्ता कायम कर लिया और अपना भाई हमें बना लिया। So again, we have access to the glory of God. जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा के सहभागी हो सकें, हम परमेश्वर की महिमा के अंश बन सकें, उसको देख सकें। If we take Romans chapter 3. देखिए रोमियो 3 अध्याय में हम जा रहे हैं। रोमन्स 3, रोमियो 3 अध्याय Verse 23, we will read. रोमियो 3 और 23 को हम पढ़ रहे हैं। For all have sinned and fall short of the glory of God. 3 और 23 इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 24वीं आयत, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। Whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sin that were previously committed. 25वीं आयत में वो कह रहा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए थे, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। To demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the ones who has faith in Jesus. 26वीं आयत, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो गई, जिससे कि वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला वो बन जाए। As we can see, beloved, प्रियो, हम देख सकते हैं sin had deprived us from the glory of God. परमेश्वर की महिमा से हम विच्छेदित हो गए थे, रहित हो गए थे पाप के कारण। We are not gonna doubt that today, by God's grace, God has given us the privilege to be called his sons and daughters again. आज देखिए, इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर कर दिया कि उस अनुग्रह के द्वारा आज हम उसके बेटे और बेटियां, पुत्र और पुत्रियां, संतान बन जाते हैं। It is by pure grace. ये उसका केवल अनुग्रह है। But there is an important aspect we just read here. यहाँ पर हमने एक खास चीज यहाँ पर पढ़ी, that this on verse 24, 24 आयत में हमने पढ़ा, that being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में का मतलब मुफ्त में, बगैर कुछ किए, अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं।
So how do we gain access to this redemption? हमको इस सिद्धता, इस छुटकारे को हम कैसे पाते हैं? In verse 26 he says, 26वीं आयत में वो कहता है, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. देखिए धार्मिकता कैसे प्रकट होगी, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला वो हो। So if we have faith in Jesus, अगर हमारा विश्वास प्रभु में है, यीशु मसीह में है, we have access to the redemption that is in him. तब हमें उस छुटकारे को हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। And then this opens the door to the glory of God again. और जब वो छुटकारा हमें प्राप्त हो जाता है, पवित्रता प्राप्त हो जाती है, तब हम उस दरवाजे के द्वारा, वो एक द्वार है जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा को हम देख पाते हैं। The glory of God is also symbolized by the Holy Spirit. और जो परमेश्वर की महिमा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होती है। वो एक तरीके से पवित्र आत्मा का मिल जाना ही परमेश्वर की महिमा में दाखिल हो जाना। We can go in Colossians chapter 1. कोलोसियों 1 अध्याय में अगर हम जाएं, कोलोसियों चैप्टर 1 में जाएं, 1 अध्याय में जाएं, verse 19. और 1 और 19, एक अध्याय की 19 आयत को अगर हम पढ़ें, कोलोसियों 1:19, It is written, for it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. That's Jesus. देखिए वो 19 आयत में बोल रहा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। That means there is no other God outside Jesus Christ. इसका मतलब यह है कि सारी की सारी फुलनेस, सारी की सारी परिपूर्णता वो केवल प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। And the reconciliation only could happen through him. और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा संबंध और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है। It is written on verse 20, I read, and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. 20वीं आयत में वो बता रहा है, और उसके क्रूस पर, यानी यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो और चाहे स्वर्ग की हो। Now, we were once alienated, as the Bible said, and enemies. बाइबल बताती है हमारे और परमेश्वर के बीच में तो विच्छेदन हो गया था, हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था और एक दूसरे से दुश्मनी हो गई थी। And verse 21 says, I read, and you who were once alienated, and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled. देखिए 21वीं आयत, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे, हम और बैरी थे। आमीन। In his body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. 22वीं आयत में वो कह रहा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में, यानी कि यीशु मसीह की शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित कर दे। It will take a great miracle, beloved. इसके लिए तो बहुत ही कोई भारी अलौकिक योजना होनी चाहिए थी ऐसा करने के लिए। For you and I, जिससे कि मैं और आप to be holy, blameless,
and above reproach in God's sight. कि हम प्रभु के समक्ष निष्कलंक हो जाएं, निर्दोष बन जाएं और प्रभु के समक्ष उपस्थित हो जाएं, ये तो कोई बहुत भारी अलौकिक योजना ही कर सकती थी, ये इतना आसान काम नहीं था। But our God has decided to take this as His project. You are God's project to be presented holy, blameless, and above all reproach in His sight. अब देखिए, प्रभु ने अपने लोगों के लिए ये योजना पहले से ही बना ली, और जो उसकी इस योजना के अंतर्गत पाए जाते हैं वही सिद्ध बनते हैं, वही निष्कलंक बनते हैं, और वही बगैर गुनाह के बनते हैं, और वही निर्दोष बनते हैं। The Lord says what He intends to do with us, even if they told us about it, we will not believe it. अगर प्रभु कहता है कि अगर कोई और भी कहे, कोई और भी समझाए, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे, केवल प्रभु की बातों पे हम विश्वास करेंगे। Our faith is that we are saved by grace. और हमारा विश्वास ये है कि हमारा अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। We fear God and we remain humble. हम अपने आप को नम्र रखते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। The reason we remain humble is because we know that anything we can do will not make us holy, blameless, and holy in God's sight. हम अपने आप को दीन और नम्र इसलिए रखते हैं कि कोई भी चीज हमें पवित्र और निष्कलंक नहीं साबित कर सकती, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए हम उसके सामने भय मानते हैं और अपने आप को हलीम और नम्र रखते हैं। But our obedience, our observing of the word of God would only grant us more mercy from God. और हम अगर उसके वचन को मानते, उस पर बने रहते, उसमें चलते हैं, तो इसी से परमेश्वर की दया हम पर आती है। It says on verse 23, और 23वीं आयत में वो कह रहा है, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. 23वीं आयत में वो कह रहा है, कुलोसियों 1:23 में कह रहा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यानी टिके रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी पृथ्वी में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। So on verse 21 we see what our condition once was. अब देखिए, 21 आयत में बता रहा था कि हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थिति क्या थी, हम क्या थे। And the Bible says we were alienated and enemies in our mind by wicked works, and God decided to reconcile us with Him. यहाँ पर बताया गया कि हमारे बुरे काम थे, हमारा मन भी बुरा था, तो हम परमेश्वर के साथ बैरी थे, पर उसने हमारे लिए इतना भारी काम किया, इतना आवश्यक काम कर दिया। That means our actions, our deeds were testifying that we are enemies of God. और हमारे जो दुष्कर्म थे वो बताते थे कि हमारे मन की क्या दशा है, और वो कर्म ये दिखाते थे कि हम परमेश्वर से विच्छेदित हैं, परमेश्वर से अलग हैं। So we can examine our actions. Are they testifying that we are friends, reconciled with God, or are they testifying that we are still enemies of God? जब इतना सब कुछ उसने कर दिया, लहू बहा दिया, हमको पवित्र कर दिया, तो आज क्या हम इस दशा में हैं कि हम अपने कार्यों को, अपने कर्मों को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या मैं आज वहां खड़ा हूं या खड़ी हैं जिसके लिए प्रभु ने ये सब कुछ कर दिया। On verse 22, it shows us that God has made it possible in Jesus Christ for us to become holy, blameless, and above all reproach in God's sight. 22वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु ने ऐसा होने दिया, उसने ऐसा पॉसिबल किया, ऐसा संभव किया कि प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हो जाए और हम उसके सम्मुख निष्कलंक और निर्दोष उपस्थित हो सकें। And the Bible says now in verse 23, और 23वीं आयत में बाइबल कहती है,
what should be our attitude after God has granted us His grace and mercy? अब हमारा क्या नजरिया होना चाहिए जबकि उसने इतनी बड़ी दया और अनुग्रह हमारे पर कर दिया, तो हमारा क्या नजरिया अब होना चाहिए? And the Bible says, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. ये जो सब कुछ उसने कर दिया, उसकी नींव उसने डाल दी, तो अब हम उस पर कैसे चलेंगे, हम कैसे कायम उसमें रहेंगे? वो कहता है विश्वास की नींव पर हमको खड़े रहना है और उस सुसमाचार की आशा को जो हमने सुना है नहीं छोड़ना है, और वो प्रचार जो आकाश के नीचे हम पर किया गया उस पर खड़े रहना है। और पौलुस कहता है कि मैं भी उसी प्रकार का सेवक हूँ। As we can see, situations will come to try and make us move away from this hope. देखिए बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी हमारे सामने और आती हैं जो कि हमको इस राह से, इस विश्वास की नींव से डिगाने की कोशिश करते हैं, हिलाने की कोशिश करती हैं। So the Bible is exhorting us और बाइबल हमें बताती है to continue in the faith. कि हमें उस विश्वास में दृढ़ तरीके से बने रहना है And be grounded. और उसके अंदर हमारी नींव पड़ी होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए वो नींव। The only way we can be grounded और वो हम उसी तरीके से हमारी नींव पक्की और दृढ़ होगी। कैसे? is if we stop thinking with our own wisdom. अगर हम अपनी बुद्धि और अपने दिमाग और अपनी अकल से सोचना बंद कर दें, तभी हमारी नींव वहां खड़ी रह सकती है। And let the word of God think instead. और हमारे मन की जगह पर, हमारी बुद्धि की जगह पर परमेश्वर की जो बुद्धि है, जो उसके वचन में पाई जाती है, उसको लेकर हम चलें, अपनी बुद्धि से ना चलें। For every situation, we should say, what does the word say about this situation? हर एक परिस्थिति में हम ये सवाल पूछें और देखें और इस चीज का निर्णय लें कि वचन इस बारे में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में। How would have Jesus reacted in a situation like और इस समय ये सवाल पूछें कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने है, इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या करता, जो वो करता वही मुझे करना चाहिए। How would have Apostle Paul reacted in this situation? और पौलुस ये कहता है कि क्योंकि वो उसका सेवक है, तो सवाल ये भी आता है कि किसी भी परिस्थिति में जो हमारे सामने आती है, पौलुस उस परिस्थिति में क्या करता, कैसे क्या करता वो उस परिस्थिति में। Only after that we can make a decision, we can react, we can act after finding the counsel of God. अभी ये सारा निर्णय लेने के बाद ही हम इस बात पर पहुंच सकते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना और सोचना चाहिए। Amen. आमीन। We go in 1 Timothy chapter 4. पहला तिमोथियो उसका 4थे अध्याय में हम जाएंगे। पहला तिमोथियो 4 अध्याय, पहला तिमोथी 4 अध्याय। So we have seen there in Colossians what was our condition, what God has done about it, and what God expects us, how God expects us to behave after that. हमने कोलोसियों में देखा कि हमारी क्या हालत थी, हम किस हालत में थे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और जब उसने वो कर दिया तो अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हमको कैसे चलना है। ये 3 चीजें अभी हमने कोलोसियों के पहले अध्याय में पढ़ी। Amen. आमीन। So 1 Timothy chapter 4 from verse 1 I read. पहला तिमोथियुस 4 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। Now the Spirit expressly says that in the later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from food which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth.
verse 1 to 3, brother. Yes, please, brother. Yes. पहला तिमोथियुस 4 अध्याय और पहली, दूसरी और तीसरी आयत अभी पढ़ी गई, वो हम हिंदी में पढ़ते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे में दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने सृजा कि विश्वासी और सत्य की पहचान करने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। Amen. So we understand that hard times are here. We are experiencing all this COVID-19, a lot of things, a lot of stories we hear. अब ये Do not do देखिए, this, do not do that. ये अंत समय की निशानियां हैं जिसमें कि भरमाने वाली चीजें हैं, दुष्ट आत्माएं और अलग अलग गलत शिक्षाएं हमारे सामने आ रही हैं और हमें भटका रही हैं, बहका रही हैं। So the Bible says people will depart from faith and start giving heed to deceiving spirits अब and यहाँ वो बता रहा है, doctrines of demons. और यहाँ ये वो बता रहा है कि इस अंत समय में लोग भरमाने वाली आत्माएं जो आएंगी और दुष्ट आत्माओं की जो शिक्षाएं आएंगी, इन पर लोग मन लगाएंगे और उस पर विश्वास करके वो बहक जाएंगे और भटक जाएंगे। इस चीज की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। Amen. आमीन। A lot of stories are being heard about conspiracies, theories, about so many things, but we just have to add faith to the word of God. आज बहुत सारी भरमाने वाली शिक्षाएं हमारे को सुनने को मिलती हैं, और हमारा कर्तव्य ये है कि हम केवल परमेश्वर के वचन पर मन लगाए रखें, उसी पर हम अपनी नींव डाले रहें, उसी को थामे रहें। As these things will steal your faith, they will steal your peace. इससे क्या होगा कि ये जो दुष्ट शिक्षाएं और भरमाने वाली शिक्षाएं हैं और ख्यालात हैं, ये हमारे को हमारे विश्वास से और हमारे मन की शांति से विचलित कर देंगे। The Bible declares that nothing happens on earth unless God has allowed it to happen. और बाइबल बताती है कि इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर उसकी इजाजत और उसकी अनुमति ना दे। So we commit our situation in the hand of the Lord and we continue to trust His word. इसीलिए हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम अपने मन को और विश्वास को परमेश्वर के ऊपर निर्धारित रखें, उसकी तरफ लौ लगाए रखें कि जो कुछ वो करेगा वो हमारे लिए भलाई ही पैदा करेगा। It's important for the believers to continue to trust the word of God more than anything they hear here and there. एक विश्वासी के लिए यह जिम्मेदारी है कि वो दुनिया की और किसी भी शिक्षा और किसी भी विश्वास को छोड़ करके, उस पर ध्यान ना लगा करके, केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास लगाए जो परमेश्वर ने कहा है, सिर्फ उसी को ताके। We read Joel chapter 2. We are going to finish Joel chapter 2. Joel chapter 2, brother? Yes, please, brother. हम जोएल यानी कि योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। योएल उसका दूसरा अध्याय। Yes, on verse 1 I'll read first. Blow the trumpets in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. For it is at hand, a day of darkness and gloominess, a day of cloud and thick darkness, like the morning clouds spread over the mountain. Amen. People come great and strong, the like of whom he never been, now
will there ever be any such after them, ever for many successive generations. Up to verse 2, brother. Up to verse 2, yeah? Yes, please. Okay. योएल नबी की किताब पुराने नियम में उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ी गई, हम पढ़ रहे हैं। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। वो अंधकार और तिमीर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई, ना उसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगी। मतलब यहाँ पर एक वो विनाशकारी और अंधियारे वाली जाति और समय के बारे में लोगों को चेतावनी दे रहा है। आमीन। Amen. But in this situation, beloved, the Bible shows how his people remain strong. देखिए, यहाँ वो बता रहा है कि जब ऐसी परिस्थिति है, जब ऐसा समय आएगा, तो बाइबल बता रही है कि प्रभु के लोगों को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, कैसा उनका नजरिया, कैसा बर्ताव होना चाहिए। It doesn't matter the situation around us. और देखिए हमारे आसपास जो आज परिस्थितियां चल रही हैं, On verse 3 it says, दूसरी आयत में कहता है, a fire devours before them and behind them a flame burns. The land is like the Garden of Eden before them and behind them a desolate wilderness. Surely nothing shall escape them. अब तीसरी आयत में वो बता रहा है, उस बात के बारे में और जिक्र कर रहा है। तीसरी आयत में उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी, यानी कि आग आने वाली है, और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी, और उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, पर पीछे की भूमि जो है वो उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और कुछ ना बचेगा। यानी कि वो आग आगे से तो आ रही है और वो जलाती जाएगी। एक वाटिका को अदन की बारी जैसी जगह को जला देगी, पीछे क्या बचेगा? पीछे कुछ नहीं बचेगा। जैसे रेगिस्तान होता है, ऐसे वहां कुछ नहीं बचेगा। On verse 7 he says, they run like mighty men, they climb the wall like men of war. Everyone marches in the formation, and they do not break ranks. They do not push one another. Everyone marches in his own column. Though they longeth between the weapons, they are not cut down. They run to and fro in the city. They run on the wall. They climb onto the houses. They enter at the windows like a thief. Verse 7 to 9. Yeah. 7वीं से 9वीं आयत तक पढ़ रहे हैं हम योएल नबी का 2रा अध्याय में। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति बना पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग नहीं चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। वे अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह में चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। आमीन। Verse 11 says, the Lord gives voice before his army, for his camp is very great. For strong is the one who executes his word. For the day of the Lord is great and very terrible. Who can endure it? देखिए 11वीं आयत में वो कहता है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और बड़ा ही भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। Now we read verse 12 and 13. अब हम 12 और 13 आयत तक पढ़ेंगे आगे चलते हुए। Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting
with weeping and with mourning. So rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. Who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind him, a grain offering and a drink offering for the Lord your God. To verse 14, brother. Yes. योएल नबी दूसरा अध्याय 12 से 14 आयत. अब यहाँ पर वो बता रहा है, पहले उसने बताया कि एक भयंकर और भयानक समय आने वाला है और उसमें आग आ रही है और भस्म कर देगी. अब इन आयतों में बता रहा है कैसे बचा जाए, क्या उपाय है. 12वीं आयत से बता रहा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ. पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ. अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो. अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला है. क्या जाने वो फिर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध कर दिया जाए, अर्ध दिया जाए. आमीन. Amen. May the Lord bless you. I think I've run out of time, but just प्रभु conclude. हम सबको आशीष दे और समय काफी हो गया है, पर इन वचनों के द्वारा जो पढ़े गए और समझे गए और सुने गए हमारे द्वारा, इनको हम अपने मनों में बिठाएं, जिससे परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा हम सबको मिले. परमेश्वर का धन्यवाद हो. God bless you, brother Sam. I know you have to leave now, so we are running out of time. We will pray for a safe and peaceful departure for brother Sam from this meeting, so that he can go and perform the responsibility that he is due to perform in short while. And प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आपकी सहायता करे और सावधानी से आपको लेकर जाए, जिससे जो काम आपने अब जाकर करना है प्रभु उसको होने दे. May the Lord bless you, brother. Thank you, Lord. Thank you, brother. God bless you. And see you, speak to you next time. God bless you. God bless you, beloved. God bless you. And Brother Emmanuel, you'll be able to conclude because it's just a quick finish. Yes. May the Lord bless you. God bless you. God bless you, brother. So we will now continue with few words as brother Sam leaves. A few words. We will just recap on those words, whatever we have heard from different scriptures here. जो बातें अभी हमने सुनी यहाँ परमेश्वर के वचन से, उसमें यह बताया गया कि परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो संबंध है, वो टूट गया था पाप के द्वारा. पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसकी देह में बलिदान के द्वारा, उसके लहू के बलिदान के द्वारा हमारा अपने से मेल मिलाप करा लिया, जिससे कि वो शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में जो अदावत और दुश्मनी थी, वो अदावत और दुश्मनी से मेल मिलाप दोबारा हो जाए. उसका एक ही जरिया था, वो जो योजना थी वो थी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. We are just trying to recap whatever we have heard during this hour from the word of God, that we were alienated from God because of sin, and there was a sense of broken relationship between us and Almighty God because of sin. And as we read in the book of Genesis chapter 3, that there was a disconnection between our relationship and God because of sin, and God had said to the serpent that his seed will never be in agreement with the seed of the woman. And seed of the woman are those children who follow Jesus Christ, because seed of the woman was Jesus, and those who are in Jesus, they are also the children of God. So the children of God and the children of the devil will never be in good agreement. There will be always an enmity. There will always be problems. But because the children of God, like Jesus Christ, will overcome by faith and receive the grace, and by fear and by faith and by obedience, they will receive the grace. And through that grace,
they will be reconciled and they will meet the same Lord with whom they were separated one day. But the Lord has told us that what we need to do. We need to stay in the Word of God. We need to anchor our faith in the Word of God. We need to continue our actions and our mind and our attitude according to the Word of God. And then He has given us the warning. Then in the last days, there is a dangerous time coming. There are deceptive teachings coming, and there are spirits which are going to operate in this world, which will try to distract us and ask us to disfollow the Word of God. But those who will continue to stay with the Word of God, they will overcome and they will be victorious, and they will see the glory of God. We cannot see the glory of God unless we have received the grace of God. And when we are in the Word of God, we receive the grace, then we see the glory of God. And when we see the glory of God, then we will be living in the heavenly places. ये बातें अभी हमने देखी कि परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए पर उसके अनुग्रह को प्राप्त करना जरूरी है। उसका अनुग्रह तब मिलता है जबकि हम उसके वचन में बने रहते हैं, उसके वचन से विचलित नहीं होते और उन भरमाने वाली शिक्षाओं, भरमाने वाली आत्माओं और धोखे की आत्माओं से परे रहते हैं और बच के रहते हैं और उससे परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा। तब हम उसके अनुग्रह को देखते हैं, तभी हम उसकी महिमा को देख पाते हैं, तभी हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाते हैं जो कि प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वी थैंक गॉड फॉर दीज वंडरफुल स्क्रिप्चर्स, and God allowed us to meditate, and God allowed us to hear them, and not only to hear them, so to receive them in our heart and to apply them and to live by them through the rest of the life until the Lord comes and takes us, or until the Lord calls us from this world towards the heavenly destination. और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि इस वचन के लिए जो हमने सुना और उस पर विचार किया और उसको हमने माना और उस पर हमको चलना है जब तक कि प्रभु ना आ जाए और ये जब तक प्रभु हमको ना बुला लेवे, जिससे कि हम अनंत जीवन उसके साथ व्यतीत कर पाएं. Now this will be we will be now finishing our this hour of the meeting, hour of this meditation. If there is any special prayer first, we will still be praying for this meeting, for this time, and for the future meetings. And also we will be doing thanksgiving to God for whatever He is doing, whatever He has done, and how He is strengthening and encouraging and empowering and giving His grace to us on day-to-day basis, so that we should continue to follow Him, because we must give our thanksgiving for every small thing. Sometimes we only pray, but we forget to do the thanksgiving. We pray, yes, in prayer we ask, but in thanksgiving we give Him thanks. That is a confirmation that we have received what we asked for, or we will also have a faith that we will receive. Even if we have not received, we still give thanksgiving, because He will give us. He is not going to forget. He is not going to go to sleep. He is not going to deprive us. So प्रभु का हम ना केवल प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं हर उस बात के लिए जो हमारी जीवन में उसने करी और करने वाला है. और अगर अभी तक नहीं करी तो प्रार्थना हम किए जा रहे हैं तो प्रभु करेगा. तो जो अभी नहीं भी हुआ उसके लिए भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु हमें ये विश्वास है, ये हमारी टेस्टिमनी है, हमारी गवाही है कि प्रभु तो हमारे जीवन में वो कार्य करने वाला है जिसके लिए हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं. और इस समय हम अब अंत में प्रार्थना करेंगे और मैं भाई जसविंदर से दरखास्त करूंगा कि वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और आज की मैचिंग के लिए और सब चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना के साथ हम इस सभा को क्लोज करेंगे. भाई जसविंदर की प्रार्थना के साथ अब हम इस सभा को क्लोज करेंगे. ब्रदर जसविंदर विल डू द क्लोजिंग प्रेयर फॉर दिस मीटिंग. गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसविंदर. आमीन आमीन. आइए हम सरों को झुकाएंगे. महान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपका प्रभु परमेश्वर अति धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं प्रभु परमेश्वर आपके, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपसे हम जो भी मांगते हैं आप हमें देते हैं और आप हमारे जीवते परमेश्वर हैं. आपकी कब्र खाली है परमेश्वर, और आपने परमेश्वर अपने चेलों को बोला
कि सारे जगत में जाओ और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु परमेश्वर, जब कोई भी इस ज़मीन के ऊपर कोई भी तेरा बच्चा परमेश्वर तेरा सच्चा कलाम, तेरा सच्चा वचन सुनाता है, वो कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि तू परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। तू कोई मनुष्य नहीं झूठ बोले, तू परमेश्वर है और जो वादे करता है उसे निभाता है। और परमेश्वर, जब तेरे बच्चे तेरा कलाम सुनाते हैं तो उनके साथ होता है। आज भी प्रभु परमेश्वर तू हमारे साथ है। परमेश्वर, तेरे सेवक ने तेरा पवित्र खालिस कलाम दिया, और ये वचन जो था ये यहोवा यूँ फरमाता वाला वचन है। और प्रभु, इससे हमें सामर्थ मिलती है, ताकत मिलती है। और जब जब परमेश्वर हम निराश होते हैं इस ज़मीन के ऊपर, प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमें संभालता है। प्रभु परमेश्वर, जिनके पास तेरा वचन नहीं है वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास तेरा वचन है वो सताए तो ज़रूर जाते हैं लेकिन बर्बाद नहीं होते। और प्रभु जी, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया है, ना कि रेत पर। चाहे अंधेरी आए, चाहे तूफान आए, प्रभु जी हमारी नींव जो है वो चट्टान पर है, तेरे वचन पर है। कोई चीज़ हमें तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। प्रभु परमेश्वर, आज का बोला हुआ संदेश हमारे जीवनों में 100 गुना 60 गुना फल लेके आए, और सिर्फ सुनने वाले ना हो, इस पे चलने वाले और विश्वास करने वाले भी हों। और प्रभु परमेश्वर, अगर कोई भाई बहन कोई ज़रूरत में है, किसी की दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, प्रभु परमेश्वर हम उनकी भी प्रार्थनाएं आपके सीधे हुए हाथों में देते हैं। प्रभु जी, हम सब की दुआएं सुनना और आशीष देना। प्रभु परमेश्वर, भाई इमैनुअल को, भाई सैम को प्रभु जी आशीष देना, और सारी कलीसिया को जो इस वक्त ऑनलाइन हम बैठे हुए हैं, हम सबको आशीष बरकत देना। प्रभु परमेश्वर, तेरा आना बहुत नज़दीक है, बल्कि जो चिन्ह तूने बोले थे वो हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। और प्रभु, तूने कहा था जब तुम इन बातों को पूरा होता हुआ देखो, अपने सरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा बहुत नज़दीक है। प्रभु, आपका आना प्रभु जी चिन्हों के मुताबिक नज़दीक नहीं बल्कि दरवाजे पर पहुंच चुका हुआ है। बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप हमें तैयारी देना कि जब भी प्रभु तू आए हम बिल्कुल तैयार पाए जाएं। हमारी कमरें बंदी रहें, हमारे दिए जलते रहें, हम दुनियावी चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं। हम हर समय प्रभु जी तेरे वचन में, तेरे आत्मा में तैयार पाए जाएं। और प्रभु जी, तेरे अनुग्रह से अगले रविवार हम फिर इकट्ठे हों। अगले रविवार तक प्रभु जी हमें संभाल के रखना। सभी भाई बहनों को सबको आशीष देना प्रभु यीशु। और प्रभु जी, ये सारी दुआ हम मांगते हैं अपने और पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। God bless you, brother जसविंदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना के लिए और प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं समय के लिए। We thank God for this opportunity and this time, and we thank God for all brothers and sisters, and we seek our blessings, God's blessings on each brother and sister as we conclude this meeting and praying for each other through the week. May the Lord protect all of us and bring us back again according to His plan. God bless you. We can now greet each other. हम एक दूसरे का अभिनंदन कर सकते हैं, एक दूसरे को से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। God bless you. आमीन। God bless you all.